163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 262 اور میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی بھیجا تھا جو آپ سے ہوم ورک کہا تھا کرنے کے لیے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو آئیڈینٹیفائی کرنا, نام کو یا ریفرنس کو, تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے ریڈ سے اس کو مارک کیا تھا, کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں لگی؟ اگر کوئی کویسچن ہے تو پلیز ابھی پوچھ لیجیے. جنہوں نے کیا تھا, جیسے فرحت نے کیا تھا, سعیدہ نے کیا تھا, نگار نے مجھے بھیج دیا تھا, تو اگر بعد میں کچھ کویسچن بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم آیہ نمبر 263 سے سٹارٹ کریں گے. سورہ بقرہ آیہ نمبر 263. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. قول معروف, قول آپ سب کو معلوم ہے, قول کا مطلب کیا ہے؟ سیئنگ, یعنی ورڈ, کوئی اسپیچ, یعنی کہ کچھ کہنا, اچھی بات آپ کہہ لیں. قول معروف یعنی saying a word which is good, which is kind, which is decent. اچھی بات کرنا, اردو میں آپ کہیں گے اچھی بات کہنا یا اچھی بات کرنا. ومغفرۃ, اور مغفرت کرنا, اور مطلب خود بھی معاف کرنا اور اللہ سے بھی معافی مانگنا. اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں کہ قول معروف و مغفرۃ یعنی مغفرت کرنا دوسروں کی بھی, دوسروں کو معاف کرنا, اور خود مغفرت سیکھ کرنا, ٹو سیک فارگیونیس, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور معروف آپ کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں, اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین را فا, اور مغفرہ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں, غین فا را, غفرہ. ٹھیک ہے, تو کیا چیز ہے؟ قول معروف اور مغفرۃ خیر من صدقۃ, یعنی بہتر ہے وہ کس چیز سے؟ صدقہ سے. از بیٹر دین اے چیریٹی, ایک صدقے کی بات کریں, صدقۃ یعنی ایک چیریٹی سے بہتر ہے یا ایک نیکی سے بہتر ہے. از بیٹر دین اے چیریٹی انگلش میں آپ کہیں گے, اور اردو میں آپ کہیں گے بہتر ہے, بھلائی سے, نیکی سے, صدقہ سے, ان سب چیزوں سے بہتر ہے کیا چیز؟ صدقہ سے کیا چیز بہتر ہے؟ میں نے آپ کو بتایا قول معروف و مغفرۃ, یعنی اچھی بات کہنا اور مغفرت, اور کسی کو معاف کرنا یا مغفرت مانگنا, وہ اس صدقے سے بہتر ہے. یتبعها اذی, یتبعها آپ نے کر لیا پہلے بھی, یعنی تا با عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی تبع یتبع تبعا, تبع یتبع تبعا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو فالو کرنا. ہم نہیں کہتے یہ اس چیز کے تابع ہیں یا اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, تو جیسے مقتدی بھی کہتے ہیں نا, تو وہ تبع جو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو تبع یتبع یعنی کسی چیز کو فالو کرنا, اگر ان یتبعها یعنی اس کو فالو کرنا کس چیز کے ساتھ؟ ازا. ازا کیا چیز ہے؟ حمزہ زالیہ, اس کا مطلب ہے اذیت, جیسے تکلیف دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کو بری بات کہنا, کسی کا انسلٹ کرنا. تو اگین آئی ول ریپیٹ کہ وہ صدقہ جس کے بعد آپ فالو کریں اس کو کسی کو ہرٹ کرنے سے, کسی کو تکلیف دینے سے, کسی کو ٹارچر کرنے سے, کسی کو انسلٹ کرنے سے, کسی کو ہیومیلیٹ کرنے سے, ٹو لک ڈاؤن اپون, اس سے مغفرت اور اچھی بات کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں اور اس کے بعد اس کو فالو کریں اذیت کے ساتھ, اس کو فالو کریں اس کو تکلیف پہنچانے پہ, اس کے اوپر آپ فالو کریں اس کو انسلٹ کرنے کے لیے. سمجھ میں آگے؟ اس سے یہ کہ آپ اچھی بات کہہ دیں اور آپ اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ غنی حلیم, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, یعنی غنی کا غین نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. غنی کا مطلب امیر بھی ہوتا ہے, غنی کا مطلب ویلدی بھی ہوتا ہے, غنی کا مطلب رچ بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر غنی جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے, آل سفیشینٹ ہے. اور حلیم, حلیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بردبار ہے, ہی از آلویز فار بیئرنگ,
یعنی انگلش میں آپ کہیں گے and Allah is all sufficient and always forbearing, all sufficient and always forbearing. اردو میں آپ کہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بے پرواہ ہیں، ان کو کسی کی پرواہ، ایسے مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ غنی ہے، ان کو کوئی، وہ سیلف سفیشینٹ ہے اور وہ بے پرواہ ہیں اور بہت تحمل والے ہیں، بہت بردبار ہیں۔ اب اس کی جب ہم تھوڑی سی تفسیر کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آیا نمبر 263 کی تفسیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں، کچھ ایٹیکٹس بتا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ہم اسپینڈ کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اگر اچھی بات آپ کسی سے کر لیں، گڈ ورڈ کر لیں، پلیزنٹ ورڈ کر لیں، کسی کے ساتھ اچھا کوئی برتاؤ کر لیں، اٹ از فار بیٹر، کہیں بہتر ہے اس چیریٹی سے، اس صدقے سے جس کے بعد آپ اس کی انسلٹ کریں، جس کے بعد آپ اس کو ٹارچر کریں یا ہیوملیٹ کریں، یعنی جو دینے والا ہے وہ لینے والے کی تضحیق کرے۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ چیریٹی ایکچولی اٹ از ناٹ اے فیور فرام اس ٹو دا ریسیپینٹ۔ اگر ہم گیور ہیں تو ہماری طرف سے یہ کسی کے اوپر ہم فیور نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، رادر اٹ از این obligation، یہ ہمارے اوپر ایک obligation ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے ہمیں، اللہ کے لیے ہمیں چیریٹی دینا ہے۔ تو جب بھی ہم چیریٹی دیں ہمیں اسے سنسیئر انٹینشن کے ساتھ دینا ہے اور اس میں ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری چیریٹیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، ملٹیپلائز اٹ سیورل ٹائمز۔ آپ نے تھوڑے کچھ کلاسز پہلے پڑھا تھا کہ ایک صدقہ کو اللہ 700 ٹائمز بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور 7 ملین ٹائمز بھی کر سکتے ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ملٹیپل ٹائمز تو اس میں 700 جسٹ ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ ایک صدقے سے آپ کو 700 ٹائمز مل سکتا ہے ثواب۔ اس آیت سے 2 تھنگس جو ہیں، بیسیکلی 3 تھنگس جو ہیں، وہ 3 چیزیں امپلائی ہوتی ہیں۔ ایک، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ از ناٹ ان نیڈ آف آور چیریٹیز، کیونکہ وہ خود غنی ہے، وہ خود سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے چیریٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 امپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ loves those people جو کہ جنرس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ loves generous people. Why? Because he himself is generous. جب اللہ تعالیٰ جنرس ہیں تو وہ کیسے اس کس کو پسند کریں گے کہ جو کہ جنرس نہ ہو۔ نمبر 3 یہ امپلائی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is most forgiving، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت، they seek مغفرت from اللہ، they seek forgiveness from اللہ، خود بھی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور دوسروں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوسروں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے پسند آئے گا کہ ہم کسی کو صدقہ دیں، خیرات دیں، and then we humiliate them, we torture them, we insult them۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سیلف رسپیکٹ کسی کی ہے اس کا خیال کرو، کسی کی سیلف رسپیکٹ کو انجر نہیں کرو۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اپنے 2 بیوٹیفل نیمز ہمیں بتا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نام بتاتے ہیں اس کا ان چیزوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ Whatever he talks in the ayah, in the end he takes the 2 names or 3 names, which means that it is connected with all that. So here it's connected with spending, with qawlun ma'roof, it is connected with to spend in the way of Allah۔ ہمیں ان ناموں کو دیکھ کے خود اس کو we must try as much as we can to emulate۔ تو یہ 2 نام کون سے تھے؟ غنیون and حلیمون۔ الحمدللہ we've already covered حلیمون some time back۔ انشاءاللہ آج we are going to learn about Allah's name غنیون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ calls himself غنی، یعنی self sufficient، independent بھی کہہ لیں، جو کسی کے محتاج نہیں ہے، on 18 occasions in the قرآن میں 18 times اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غنی بولا ہے۔ غنی کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ غین نون یا، غین نون یا۔ یہ روٹ جو ہے وہ قرآن میں آپ کو میں نے بتایا 18 اوکیشنز پہ الغنی کہا گیا ہے، لیکن یہ روٹ جو ہے ڈفرینٹ فارمز میں، 5 ڈیرائیوڈ فارمز میں 73 ٹائمز اپیئر ہوا ہے ان دا قرآن، اور اس کے 4 مین میننگز ہیں۔ اس کا فرسٹ میننگ یہ ہے ٹو بی سیلف سفیشینٹ، یعنی خود کفیل، اور اسی کے اندر سیکنڈ ہے یعنی انڈیپینڈنٹ۔ فرسٹ میں یہ ہے
to be self sufficient and be independent, यानी खुद कफील भी होना और किसी का मोहताज नहीं होना. अल्लाह ताला is self sufficient and अल्लाह ताला is independent, वो किसी के मोहताज नहीं है. Second meaning is to be free from needs or wants, यानी जिसको किसी को जरूरत ही नहीं है. अल्लाह ताला को हमारी जरूरत ही नहीं है, ना उनकी कोई हाजात है ना जरूरियात है, वो खुद अपनी हाजात पूरी करते हैं. नंबर 3, थर्ड मीनिंग ये है कि to be satisfied and to be content. सेटिस्फाइड का मतलब ये मुतमईन होना, किसी चीज से राजी होना. कंटेंट का मतलब ये राजी होना, कनात पसंद होना. तो ये चीजें सब इसमें आ रही हैं. हमारे लिए भी हो सकती हैं ये तमाम एट्रीब्यूट्स और अल्लाह के लिए भी हो सकती हैं कि अल्लाह ताला सेटिस्फाइड है, अल्लाह ताला कंटेंट है, हम भी मुतमईन और सेटिस्फाइड हो सकते हैं. द फोर्थ मीनिंग इज टू बी वेल्दी. वेल्दी यानी दौलतमंद होना, एंड और टू बी रिच, अमीर होना. अल गनी यानी अल्लाह सुब्हानो व तआला इन सब में से सारी चीजें, ये तमाम जो अभी मीनिंग्स हमने किए हैं, ये तमाम मीनिंग्स अल्लाह पर इकट्ठी अप्लाई होती हैं. और हम सब जो हैं, हम अल्लाह के क्रीचर्स हैं, हम सब अल्लाह के, हम इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम इतने दौलतमंद भी नहीं है जितना हम समझते हैं, हमारी नीड्स भी हैं, हमारे वांट्स भी हैं, हम खुद कफील भी नहीं है. तो अल्लाह के आगे हम सब वी आर इन नीड ऑफ अल्लाह, वी स्टैंड इन नीड ऑफ हिम एंड ऑलवेज. And everyone, every single person and every single creature on the earth, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदे हों, सब भी अल्लाह पे डिपेंडेंट है. अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और हम सब अल्लाह पे डिपेंडेंट है. अब हम देखते हैं हाउ डू वी लिव बाय दिस ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह, द नेम गनीउन. नंबर 1, our wealth should not distract us, यानी we should not let our wealth distract us. कितने भी हम अमीर हो जाएं, कितने भी हम वेल्दी हो जाएं, कितना भी हमारा फैंटास्टिक करियर हो, कि हमें ये हर दफा अपने आप को रिमाइंड करना है कि जो कुछ भी है, ये वेल्थ, ये दौलत, ये जायदाद, ये सब कुछ इसके हम टेम्पररी ओनर्स हैं. We are not permanent owners. The only real and permanent owner of everything is Allah subhanahu wa ta'ala. और हमें ये भी याद रखना है कि हमारा पर्पस इन लाइफ जो है वो ये दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत है. अल्लाह के ओबीडियंस इसलिए करना है ताकि हम आखिरत के लिए स्ट्रगल करें. और इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह नंबर 35 आया नंबर 15, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह. या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए इंसानों, ओ मैनकाइंड, ओ पीपल, अंतुमुल फुकराउ इलन्नास, you all are poor in front of Allah. You are in need of Allah. Fuqara means the one who is need. Fuqara, जिसको फकर हो, poverty हो, you are in need of Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Whereas Allah is ghani, yani he is self-sufficient, he is beyond need, he doesn't need anybody, and he is hamid. hamid का क्या मतलब है? praiseworthy. ठीक है, जो इसकी तारीफ की जाए. तो देखें, हम भी ट्राई करते हैं कि हम अपना पैसा, हमारा पावर, हमारी पोजीशन, हमारा जो कुछ भी हमारे पास है, हम इसलिए यूज करें ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें. ठीक है. नंबर 2 ये कि हम अल्लाह को हर वक्त, अल गनी को हम हर वक्त थैंक करें. क्यों हम थैंक करें? क्योंकि जब हमें कोई भी वेल्थ आती है, कोई भी हमें पोजीशन मिलता है, कोई प्रमोशन मिलती है, कोई फाइनेंशियल गेन होता है, किसी चीज की भी बेनिफिट होती है, हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये किसने प्रोवाइड किया हमको? अल्लाह. अल्लाह इज द अर्रज़ाक, अल्लाह इज द प्रोवाइडर. तो जब अल्लाह ने हमको प्रोवाइड किया तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल गनी ने हमको प्रोवाइड किया, और हम अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि या अल्लाह, जो कुछ हमें तूने दिया है, जितना कुछ हमें रिस्क दिया, उसमें बरकत दे, और अल्लाह ताला हमें उस रिस्क को हलाल चीज, रिस्क भी हलाल दे और हलाल चीजों पर खर्च करने की तौफीक दे. अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें सूरह इब्राहिम में, सूरह 14 आया नंबर 4, वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद. अगेन गनी के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप सब के साथ इन तकफुरु, हमने ग्रेटफुलनेस की बात की, अल्लाह का शुक्र अदा करने की, ये तकफुरु जो है इसमें नाशुक्री का आ गया. इफ यू आर अनग्रेटफुल, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल टू अल्लाह. और फिर अल्लाह का बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतुम वमन फिल अर्दि जमिया, यानी आप, अंतुम आप सब, वमन फिल अर्दि जमिया, और जितने लोग जमीन में हैं, पूरी की पूरी कायनात अगर है, सब के सब भी अनग्रेटफुल हो जाए अल्लाह को, अल्लाह का शुक्रिया ना अदा करें, अल्लाह के ग्रेटफुल ना हो, ग्रेटिट्यूड ना करें, तो भी अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्नल्लाह, तो भी बेशक अल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह ताला इज गनी.
अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अल्लाह ताला is beyond the need of our praise, beyond the need of our thanking, beyond the need of our gratitude. और फिर हमीद, अल्लाह ताला प्रेज वर्दी भी है. नंबर 3 हमें ये करना है, अल-गनी से हमें ये सीखना है कि वी शुड बी कंटेंट. मैंने आपको बताया ना कि गनी का एक मतलब है टू बी कंटेंट, कनात पसंद होना. तो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि हम कनात पसंद हो, अल्लाह की रजा पे राजी रहें, जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया उस पे हम राजी रहें. और इसके मुतालिक एक हदीस भी है बहुत खूबसूरत, लैसल गनिया अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गनिया अन गिनन नफ्स, वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स. यानी लैसल गिना अन कसरतिल अर्द, यानी कि नहीं है गिना यानी रिचनेस या वेल्थ या दौलत कह लें, ये सब जो दौलतमंद, ये सब चीजें इसमें नहीं कि हमारे पास बहुत कसरतिल अर्द यानी हमारे पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारा माल हो, उसको गनी नहीं कहते हैं. ये रिचनेस या वेल्थ है, इसको गनी नहीं कहते. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वलाकिन्ना, लेकिन यानी रादर अल गिना यानी जो ट्रू रिचनेस है, गनिया नफ्स, हमारी नफ्स यानी हमारी नफ्स, हमारी जो सोल है उसकी रिचनेस है. और सोल की रिचनेस कैसी होती? कंटेंटमेंट ऑफ द सोल. हमारा दिल अगर सुकून में है, हमारा दिल आराम में है, हमारे दिल को कनात है, हम और नहीं मांग रहे, वी आर हैप्पी, वी आर कंटेंट, इसका मतलब ये कि हम सही मानों में हम रिच हैं. जिसके बाद बहुत सारा माल है वो जरूरी नहीं है कि वो कंटेंट भी हो. ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है. तो लिटरल मीनिंग जो है गिना का लिटरल मीनिंग आप देखें, उसका मतलब है रिचनेस या वेल्थ. उसमें सोल की बात नहीं आ रही है. और हम नॉर्मली मेजर भी कैसे करते हैं? हम कहते हैं ओह इसके पास इतना बैंक बैलेंस है, इसके पास इतने एसेट्स हैं, इसके पास इतनी जायदाद है, इसके पास इतनी बिजनेसेस हैं, इसके पास लैंड है, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ट्रू रिचनेस नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीडिफाइन किया. हम तो डिफाइन यही करते हैं ना कि जिसके पास वेल्थ है वो रिच है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो रिच है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रीडिफाइन किया. इस रिचनेस को उन्होंने क्या बोला? इट इज फ्री फ्रॉम वांट, यानी आपका सोल सेटिस्फाइड है, आपका सोल, आपका हार्ट, उसमें कंटेंटमेंट है, उसमें कनात है. तो जो आप अपने हार्ट के अंदर फील कर रहे हैं, आपके पास मटेरियल पोजेशन नहीं है, आप अमीर नहीं है, लेकिन आप हैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड हैं विद वॉट एवर यू हैव. और उसके बाद आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, मेरी दौलत इंक्रीज हो जाए, मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाए. तो तब क्या है? दैट इज ट्रू रिचनेस. आप दिल से, आप अपनी रूह से, आपको इत्मीनान है. तो क्या होगा? आपको नींद भी अच्छी आएगी, यू विल हैव अ साउंड स्लीप एट नाइट. और रियल पॉवर्टी क्या चीज है, गुर्बत क्या चीज है, रियल पॉवर्टी इसके बरक्स वो क्या चीज है? ग्रीडीनेस है, ग्रीड है, लालच है. यानी आप कभी भी राजी नहीं है, कभी आप कंटेंट नहीं है, आप कहते हैं बस ओवर एम्बिशियस है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और अमीर होना है. और कभी भी वो बंदा अल्लाह से राजी नहीं होगा. अल्लाह ने जितना भी उसको दिया, वो कितना भी अमीर हो जाएगा, फिर भी उसकी गुर्बत उसके दिल के अंदर रहेगी. ऊपर से वो अमीर होगा, लेकिन वो अंदर से क्या होगा? गरीब होगा. उसका सोल, उसकी रूह गरीब होगी, उसकी रूह में गिना नहीं होगा. तो इसीलिए आप देखें कि कितना भी पैसा आप खर्च कर लें, हैप्पीनेस को आप नहीं खरीद सकते हैं. और आपकी रात की नींद भी आप नहीं कर सकते. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपको उस पैसों की, अपनी बिजनेस की फिक्र होती रहेगी. एक स्कॉलर ने बड़ा अच्छा कहा है, कंटेंटमेंट इज अ किंग that resides only in the heart of a believer. कंटेंटमेंट क्या चीज है? एक बादशाह है, एक किंग है, जो कि सिर्फ एक बिलीवर के हार्ट में होता है. यानी वो बादशाह आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका हार्ट कंटेंट है, आपका हार्ट रिच है, आपके पास मटेरियल नहीं है. तो इसीलिए अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि जब से हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेल्थ क्या चीज है? कि जो अल्लाह ने हमारे लिए डिक्री किया है, जितनी दौलत, जितना पैसा, जितना रिस्क दिया, उस पे हम सेटिस्फाइड हैं, उस पे हम कंटेंट हैं. जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया, क्योंकि अल्लाह रोक भी सकता है, अल्लाह दे भी सकता है. और अल्टीमेट ट्रैंक्विलिटी ऑफ आवर सोल क्या है? कि हम कंटेंट रहे. नंबर 4 क्या है? अलगनी के नाम से, वी शुड नॉट बेग और आस्क फ्रॉम अदर्स व्हेन देयर इज नो नीड. हमें किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे सवाल नहीं करना है. और इसकी भी एक ब्यूटीफुल हदीस है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, ये रिपोर्ट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाय हिम इन हुज हैंड इज माय सोल, यानी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी रूह है, मेरी जान है. इफ वन ऑफ यू वर टू कैरी अ बंडल ऑफ फायरवुड ऑन हिज बैक, अगर आप में से कोई एक लकड़ी का, जैसे फायरवुड नहीं होता लकड़ी जो हम जलाते हैं, अगर वो अपने बैग पे आप लेकर जाएं और आप उसको बेचें, यानी लकड़ी बेचना, फायरवुड काटना और फायरवुड बेचना, वो
it would be better for him than begging a man who may or may not give him anything. यानी आपके पास वो लकड़ी आप काट कूट के बेचने जा रहे हैं, it is still better कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी से मांगे, किसी के आगे सवाल करें. तो एज मुस्लिम्स हमें लेजी नहीं होना चाहिए, हमें इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, और हमें किसी और पे बर्डन नहीं बनना चाहिए. हमें किसी सिर्फ पैसा इंक्रीज करने के लिए नहीं मांगना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है, थोड़ा और हो जाएगा. हम देखते हैं क्या एक हालत होती है जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, वो रोज कमाते हैं, जो उनके मालिक होंगे, जो भी होंगे, उनके हाथ में देते हैं, और कभी भी उनकी जिंदगी इससे बाहर नहीं निकलती है. एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अगेन अबू हुरैरा ने फरमाया, उसमें उन्होंने, ये मुस्लिम में है, कि जो बेग करेगा, जो भीख मांगेगा फॉर वेल्थ टू एक्यूमुलेट मोर रिचेस, जो ज्यादा से ज्यादा अमीर होने के लिए बेग करेगा, उसमें वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ही इज ओनली आस्किंग फॉर अ हॉट कोल फ्रॉम हेल फायर. यानी वो दोज़ख में से ईंधन को लाके, जो दोज़ख में से समझे कोयला लाके, जलती हुई कोयला, जलते हुए ईंधन को लाके वो अपने लिए उसको ले रहे हैं. चाहे वो थोड़ा मांगे, चाहे वो ज्यादा मांगे, किसी से मांगना नहीं, सवाल नहीं करना है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें आप बेग कर सकते हैं. 3 ऐसे केसेस हैं. एक वो इंसान, मर्द नहीं, एक वो इंसान, मैन लिखा होता है तो मैं मर्द पढ़ लेती हूँ, एक वो इंसान कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, वो कर्जदार हो गया, किसी भी वजह से कर्जदार हो गया, तो उसके ऊपर उस वक्त तक उसको इजाजत है कि वो बेग करे जब तक कि उसका कर्जा चुक ना जाए, उसके बाद वो ना करे. कर्जा चुक गया, बस खत्म. नंबर 2, एक ऐसा केस कि जिसकी एक ऐसी कैलेमिटी आ गई कि जिसकी वजह से एक बंदे की प्रॉपर्टी पूरी लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब उसके पास कोई घर नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी, वो अपने आप को सपोर्ट भी नहीं कर सक रहा है. इस वक्त वो अगर बेग कर ले इस हालत में कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जाके किसी से बेग कर सकता है, और जैसे ही वो अपने आप को सपोर्ट कर ले उसके बाद बेग करना छोड़ दे. तीसरा केस ये है कि किसी को इतनी गुर्बत पहुंच गई, ही इज बीन अफ्लिक्टेड बाय सो मच पॉवर्टी, कि लोगों को पता है कि ये बंदा वाकई गरीब है, उसको कम से कम 3 ट्रस्ट वर्दी लोग अटेस्ट कर दे या टेस्टिफाई कर दें कि हाँ ये बंदा वाकई ही गरीब है, तो फिर उसको इजाजत है कि वो बेग कर ले, वो किसी से मांगे, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को सपोर्ट कर ले फिर ना मांगे. यानी कि देखें, ये 3 के अलावा इट इज फॉरबिडन, हराम है हम पे कि हम बेग करें, किसी और से मांगे, किसी और को सवाल करें. ये भी मुस्लिम में है. नंबर 5 ये कि हम अल गनी, यानी अल्लाह जो सेल्फ सफिशिएंट है, उससे हम दुआ करें, उससे हम मांगे. जितनी भी हम दुआएं करते हैं उसमें हम अल गनी से मांगे. और मूसा अलैहिस्सलाम की कॉम्प्रिहेंसिव दुआ अब सबको मालूम है, पहले भी हम कर चुके हैं. अल्लाह ताला ने हमको बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सूरह अल क़सस में है, अल क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24, बेहतरीन दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर. यानी रब्बी, ओ माय रब, अल्लाह ताला से, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, ट्रूली आई एम, लिमा अंजलता, वट एवर you send to me, ilayya to me, lima anzalta ilayya, whatever you send to me, min khairin, of the good, आप जो भी मेरे ऊपर गुड भेजेंगे. फकीर, मैं फकीर हूँ, मैं इन नीड हूँ, मैं उस चीज के लिए आपसे बेग करता हूँ. ये जब फकीर होना है उसका मतलब हम अल्लाह से बेग कर रहे हैं कि हम इन नीड हैं. किस चीज के इन नीड है? जो कुछ आप कोई भी बेहतर चीज आप मुझे दे दें. यानी मैं इतना फकीर हूँ, आप मुझे जो मेरे लिए देंगे वो मेरे लिए वो मेरी नीड है. तो हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं. अभी जब हम अलगनी पे हैं, ओ अल्लाह, ओ अलगनी, हमें मालूम है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये भी मालूम है, हम ये समझते हैं कि हमें आपकी जरूरत है. वी ऑल नीड यू. ओ अल्लाह, हमें रिकग्नाइज करा दे कि हमारी जो गुर्बत है वो आपके सामने है, आप सबसे ज्यादा गनी है और हम आपके सामने फकीर हैं. ओ अल्लाह, हमें हमेशा आपके लिए थैंकफुल बनाए, हम आपका शुक्र अदा करें, इसलिए कि जो कुछ भी आपने हमें नाजिल किया, जो कुछ भी आपने हमें रिस्क दिया, उसके लिए हम हमेशा आपका शुक्र अदा करें. फिर ओ अल्लाह, हम आपसे ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम अपनी जो वेल्थ आपने जो हमें दी है, हम आपके रास्ते में उसे खर्च करें.
اور او اللہ جو آپ نے ہمیں ہمارے لیے جو بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے ہم کنٹینٹ رہے. ود دا ڈگری آف اللہ میک اللہ پلیز اللہ اڈورن us with contentment. ہم راضی رہیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا اور ہم زیادہ سیلفش اور ایمبیشس نہ ہوں. او اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم اچھا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یعنی کہ ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم اپنی اچھی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. آیا نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بہت ہی وارننگ والی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. او یو دوز ہو بلیو، یہ تو آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. لا تبطلوا، تبطلوا جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں با طا لام، یعنی کہ کسی چیز کو باطل کرنا، کسی چیز کو نلیفائی کرنا. لا تبطلوا، ڈو ناٹ نلیفائی، ڈو ناٹ نلیفائی، ڈو ناٹ میک وائڈ صدقاتکم، آپ کے صدقوں کو. آپ جو صدقہ دیتے ہیں، ڈو ناٹ نلیفائی، ڈو ناٹ میک وائڈ یور چیریٹیز، یعنی آپ ضائع نہیں کرو، نلیفائی نہیں کرو، باطل نہیں کرو. کس چیز کو؟ اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو. اور اس کے گردان دیکھ لیتے ہیں، یہ فارم 4 ہے. ابتلا ابتلا یبتلو ابتالن، ابتلا یبتلو ابتالن فارم 4 ہے. بطلا کا با طا لام. ٹھیک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی اے ایمان والوں، ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو، کہ اپنے صدقات کو باطل مت کر دو، وائڈ نہیں کر دو، بیکار نہیں کر دو. بالمن والاذی، بالمن، من میم نون، نون اس کا مطلب ہے کسی کو ریمائنڈ کرنا کہ میں نے احسان جتا کے، آپ سمجھے. بالمن یعنی من احسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی پہ جتاتے ہیں، اور اذا آپ نے ابھی پڑھا تھا اذیت دے کے، تو کسی کو ریمائنڈ مت کرو کہ میں نے آپ پہ یہ احسان کیا، میں نے آپ کو یہ صدقہ دیا، اور کسی کو ہرٹ مت کرو. ابھی بھی ہم پڑھ چکے ہیں قول معروف جو ہے وہ بہتر ہے کہ کسی کو آپ کچھ دو اور اس کے بعد آپ اس کو اذیت پہنچاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ مت کر دو، ڈونٹ نلیفائی، اس کو بیکار نہ کر دو. کالذی، لائک the one ينفق مالہ، لائک the one who spends his wealth. کس طرح اسپینڈ کرتا ہے؟ ریا الناس، ریا آپ کو پتا ہے ٹو شو آف، الناس ٹو دا پیپل، یعنی لائک دا ون ہو اسپینڈس ہز ویلتھ ٹو شو آف ٹو پیپل، یعنی مانند اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے آگے، مطلب دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو آپ اپنے پیسوں کو اگر آپ نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ آپ کا وہ جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ اس کو نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اس کا آپ نفقہ جو ہے ينفقو، یہ کر چکے ہیں پہلے بھی آپ. انفقہ یہ فارم 4 ہے، نفقہ جو ہے وہ فارم 1 تھا. اذا انفقہ ينفقو انفاقن، انفقہ ينفقو انفاقن کون سا ہے؟ فارم 4. تو دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ مت خرچ کرو. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اینڈ یہ اس شخص کی طرح ہے. ہاں یہ اللہ بتا رہے ہیں اس شخص کی طرح نہ کرو. وَلَا يُؤْمِنُ، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر. یعنی he does not believe in Allah, the person who is giving only to show off, only to be seen by the people, and he does not believe in Allah, and he does not believe in the last day. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی طرح نہ بنو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَثَلُهُ، یعنی اس کی مثال، اس کی example, his example is كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، is like the example of صفوان. صفوان کیا چیز ہے؟ صَفَوَاو، اس کا مطلب ہے ایک smooth rock، بالکل smooth rock، یعنی بالکل کہتے ہیں نا چٹیل. ایسا ایک راک ہے، ایسا ایک پتھر ہے، ایسی ایک چٹان ہے جو کہ چکنا ہے، بالکل پتھر ہے یا چٹان ہے، بالکل چکنا ہے، جس کے اوپر بولڈر ہے، راک ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، بالکل اسموتھ ہے. His example is like the example of a smooth rock or a smooth boulder، یعنی اس کی مثال ہے چکنے پتھر یا چٹان کی طرح ہے.
अलैहि तुराब, अलैहि अपॉन इट इज तुराब, तुराब का क्या मतलब है? डस्ट, मट्टी, तराबा तुराब, अलैहि उसके ऊपर क्या चीज है? मट्टी, अपॉन इट इज डस्ट, यानी एक तो वो चिकना पत्थर है उसके ऊपर मट्टी है। फअसाबहु वाबिलुन, उसके ऊपर फिर क्या? फअसाबहु, असाबा के रूट लेटर्स हैं साद वाव बा, असाबा युसीबु असाबतुन, यानी उसके ऊपर कोई चीज बरसी, क्या चीज बरसी? वाबिलुन, वाबिलुन क्या है? तेज बारिश। देन फेल ऑन इट हैवी रेन, फिर उसके ऊपर बरसे जोर की बारिश, यानी एक तो चिकना पत्थर है उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट है, एक लेयर है, उसके ऊपर जब बारिश बरसती है तो क्या होता है? फतरकहु सल्दा, तरकहु, तरक करना यानी छोड़ देना, उसको छोड़ देता है, उसका अबेंडन कर देता है, क्या चीज? सल्दा, सल्दा के रूट लेटर्स है साद लाम दाल, तरक आप पढ़ चुके हैं, ताराका यानी किसी चीज को छोड़ देना, अबेंडन करना, तो उसको कैसे छोड़ देता है? अबेंडन कर देता है, किस चीज को? उस रॉक को, बिल्कुल बेर, सल्दा यानी बेर यानी बॉल्ड, बिल्कुल गंजा हो के, आप समझ गए, चिकना गंजा रह जाता है। बारिश आती है, ऊपर का जो मट्टी की जो लेयर है, डस्ट की जो लेयर है वो धुल जाती है, वो हट जाती है, और नीचे से क्या रह जाता है? चिकना रॉक, चिकना पत्थर, यानी उसको वो छोड़ जाता है, साफ पत्थर को जिस पर कुछ भी ना उगे। अब ये देखें, उगने की बात हो रही है, ला यक़दिरूना अला शैइन, यानी दे हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग, वो लोग जो इस तरह करते हैं उनके ऊपर वो कोई कुदरत नहीं रखते, कोई ताकत नहीं रखते किसी चीज पर, मिम्मा कसबू, ऑफ व्हाट दे अर्नड, जो कुछ उन्होंने कमाया, कसबा यकसिबु कसबन, जो कुछ उन्होंने कमाया, वो उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रखते, कोई कदर नहीं रखते हैं उसके ऊपर, किस चीज के ऊपर? वो जो चिकना रह गया है, ऊपर से मट्टी हट गई है, इसका वल्लाहु, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, वल्लाहु एंड अल्लाह, ला यहदी डज नॉट गाइड, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता है, अल काफिरीन यानी उस नेशन को, उन लोगों को, द पीपल हु आर काफिरीन डिसबिलीवर्स, यानी कुफर करने वाली कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है। अब इसकी ये 264 आयत थी, 265 इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, तो हम 265 भी साथ ही पढ़ लेते हैं। वमसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली, मैं पढ़ती हूँ, वमसलु लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फआतत उकुलहा दुअफैन फइन लम युसिबहा वाबिलुन फतल वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। अब अल्लाह एक और एग्जांपल दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि वमसलु लज़ीना, एंड द एग्जांपल of those who yunfiquna, they spend amwalahum, their wealth, and the example of those who spend their wealth, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल, इब्तिगा मर्दातिल्लाह, इब्तिगा, इब्तगा यबतगी इब्तिगाउन, फॉर्म 8 है ये, इब्तगा यबतगी इब्तिगाउन, इब्तिगा मस्दर है, उसका मतलब क्या है कि वो सीख करते हैं, वो दे वांट क्या चीज? मर्दातिल्लाह, मर्दा यानी अल्लाह की प्लेजर, अल्लाह की रजा। इब्तिगा के रूट लेटर्स हैं बा गैन या, और मर्दात के रूट लेटर्स हैं रा दाद वाव, रदिया है ना, अल्लाह के रजा को। तो जो लोग खर्च करते हैं अपने माल को सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, व तस्बीतन यानी तस्बीत किससे? साबाता यानी मजबूत रहना, वो फर्म रहना, और वो साबित कदम रहना, यानी वो फर्मनेस होती है, उनमें सर्टिनिटी होती है, उनके हार्ट्स में, मिन अनफुसिहिम अपने सोल्स में, अपने हार्ट्स में, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, और वो खुले दिल से खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहे हैं, और उनके दिलों में, उनके हार्ट्स में, उनके सोल्स में क्या चीज है? अपने नफ्सों पे उनको वो साबित कदम है। सब्बता यस्बितना, सब्बता यस्बितु तस्बितु तस्बीतन ना, सब्बता यस्बितु तस्बीतन, ये क्या है? फॉर्म 2 है, फ़अला वाला, सब्बता, ठीक है, फॉर्म 2। तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की रजा के लिए, और उनके नफ्स भी उस पे साबित कदम है, उनकी मिसाल कैसी है? कमसली जन्नतिन बिरबवतिन, जन्नत क्या चीज होती है? यानी एक गार्डन,
जीम नून नून, एक गार्डन, बिरबवतिन, रब का मतलब है कोई एलिवेटेड जगह हो, एक हाइट हो, उसके ऊपर हो। यानी पहले आपने एग्जांपल देखी एक चट्टान की, बेर चट्टान थी, उसके ऊपर हल्की सी डस्ट थी। ये आपने देखा एक गार्डन है जो एक हाइट के ऊपर है, एक एलिवेशन के ऊपर है, यानी जरा उठी हुई है वो गार्डन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग है, एक गार्डन है, और एक बुलंद जगह पे है, एक हाइट पे है। फिर असाबहा वाबिलुन, उसके ऊपर क्या गिरी, असाबहा, जिस तरह पहले भी असाबहा था, इसके ऊपर असाबहा, इसके ऊपर वाबिलुन, उसके ऊपर हैवी रेन पड़ी, उसके ऊपर जोर की बारिश पड़ी, तो उससे क्या हुआ, फ़अतत उकुलुहा दैफाइन, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ज्यादा, दैफाइन का मतलब है डबल, दुगना, मल्टीपल टाइम्स उसमें क्या हुआ, उकुलहा, उसका जो फ्रूट है, उसका जो हार्वेस्ट है वो डबल हो गया। सो इट यील्डेड, फ़अतत यानी इट यील्डेड इट्स हार्वेस्ट, या इस फ्रूट जो भी था डबल यानी ट्वाइस, बस वो अपना फल दुगना देता है। यानी अब आपके ऊपर है वो, उसके ऊपर आपका गार्डन है, उसके ऊपर खूब बारिश पड़ी, और वो बजाय इसके कि वो साफ हो गया, उधर दुगना फल हो गया। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, अगर जोर की बारिश ना भी पड़ी, फ़इल्लम युसिबहा यानी इफ डिड नॉट फॉल हैवी रेन ऑन इट, यानी फतल यानी एक छोटा सा ड्रिजल भी हो गया, वाबिलुन एक हल्की सी बारिश भी हो गई, तो भी फतल, उसके उसके उसकी वजह से एक फुहार भी पड़ गई, उस पर हल्की सी बारिश हो गई, ड्रिजलिंग हो गई, तो भी क्या होगा, उसमें उसमें काफी है वो। इसमें लिखा हुआ नहीं है फतल, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर उसके पास हल्की सी भी बारिश पड़ी, जरा सी भी फुहार हुई, तो क्या उसका मतलब ये कि उसके अंदर फिर भी डबल उसके ऊपर होगा, जोर की बारिश की भी जरूरत नहीं, हल्की सी बारिश। समझ में आ गई? इसमें लिखा ना फ़इल्लम, यानी इन का मतलब है अगर, अगर ये हरफ शर्त है, और फतल का मतलब है जवाब शर्त, कि अगर बस फिर भी अगर फुहार भी पड़े तो भी काफी है उसके लिए। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, वल्लाहु एंड अल्लाह, बिमा ऑफ व्हाट तामलूना यू डू, बसीर इज ऑल सीयर, यानी ऑल सीइंग, अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं जो कुछ के आप करते हैं, जो कुछ आप अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। अल्लाह इज ऑफ वट एवर यू डू ऑल सीयर या ऑल सीइंग। नाउ वी डू द तफसीर ऑफ बोथ आयात 264 एंड 265। ये दो आयात में अल्लाह ताला ने दो कंट्रास्टिंग सीन्स हमें बताए, इसीलिए दो को इकट्ठे किया। फर्स्ट सीन क्या है, उसमें एरिड हार्श एक बैरन किस्म की एक जगह है, जिसकी पत्थर है, नीचे चिकना पत्थर है, बैरन रॉक है, और उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है कि ओ मट्टी की लेयर है इसके ऊपर। इससे क्या होता है, इसका कैरेक्टर अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि जब एक बंदा चैरिटी दे रहा होता है, अल्लाह ताला ने पत्थर की मिसाल क्यों दी है, मिसाल ये दी कि जो बंदा सदका दे रहा हो, जो चैरिटी दे रहा हो, अल्लाह ने हमें क्या बताया, जो कि लोगों को दिखाने के लिए है, इट इज टू बी सीन बाय द पीपल, रियाकारी के लिए, उसकी जो हार्शनेस है, उस बंदे की जो मुनाफत है, उसका जो निफाक है, वो अंदर छुपा हुआ है, उसकी रियल पर्सनालिटी अंदर है, उसको उसने कवर किया हुआ है, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर किया हुआ है, जिससे वो पत्थर नजर नहीं आता है, जिसके ऊपर मिट्टी नजर आ रही है, हम कहते हैं वो ये तो बड़ा जरखेज है। इसी तरह वो बंदा जो कि रिया करने के लिए, दिखावे के लिए अपना माल देता है, उसकी असल पर्सनालिटी अंदर छुपी हुई होती है। जब टाइम आता है, जब वक्त आता है, यानी बारिश, जैसे बताया कि बारिश आई, जब ऐसा कुछ हुआ, तो उसका तमाम जो डीड्स हैं वो क्या हो गए, नलिफाई हो गए। अल्लाह ने कहा ना, उसके तमाम डीड्स नलिफाई हो गए, जाया हो गए, क्योंकि उसका जो अंदर का मोटिव जो है, उसका इंटेंशन है, वो एक्सपोज हो गया। उसका जो शैलो नेचर था किस तरह का रह गया, जैसे कि वो पत्थर बेर रह गया, चिकना पत्थर रह गया, ऊपर से मिट्टी धुल गई, उसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं उगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फल, कोई हार्वेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब एक बंदा ये सोचता है कि मुझे लोग देखें, मैं शो मारूं, लोग मेरी तारीफ करें, उसका मतलब क्या है, वो बंदा अल्लाह में ट्रूली बिलीव नहीं कर रहा है। बिलीव तो कर रहा है, हाँ हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह में मानते हैं, लेकिन जब वो चीज अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहा है, लोगों के दिखावे के लिए कर रहा है, और तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो फिर अल्लाह में भी बिलीव नहीं कर रहा है, वो आखिरत में भी बिलीव नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, वो इसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे कि वो काफिर है, वो कुफर कर रहा है। और जो अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहा है कुछ भी, तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं हम बिलीवर्स को, मुझे और आपको, वो कह रहे हैं अपनी चैरिटीज को, अपने सदकात को जाया ना कर दो, वॉश नहीं कर दो, नलिफाई नहीं कर दो। और अगर हम ऐसा कर देंगे, तो जैसा कि वो रॉक एक्सपोज हो गया हैवी रेन के साथ, और उसमें कुछ भी नहीं रहा, हम भी अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं मांग सकेंगे। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह।
because we did not give in the first place. We did not give for the sake of Allah. We gave for the people to see, to show off, so people can praise us. फिर अल्लाह ताला हमको ये वार्न भी कर रहे हैं कि we will have no control in the आखिर over it. हमें कुछ भी उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा. जो भी चीजें हमने अर्न किया, मिम्मा कसबू, जो इन्होंने अर्न किया, वो सब कुछ वॉश हो जाएगा जैसे कि डर्ट वॉश हो गया उस पत्थर के ऊपर से. और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता. और ये काइंड ऑफ कुफर जो है, ये क्यों अल्लाह ताला हमारे इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को कुफर से तशबीह दे रहे हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पैसा हमारा है, ये तो हम जैसे मर्जी खर्च कर लें, और वो ये समझते हैं कि हम दूसरों के ऊपर फेवर कर रहे हैं. तो एक तो ये कि वो पैसा अल्लाह का नहीं समझ रहे, अपना समझ रहे हैं. दूसरा ये कि जब वो पैसा किसी को दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम इस पे एहसान कर रहे हैं, लोग देखें, हम शो ऑफ करें. इसका मतलब क्या, हम अर रज़ाक को भी डिनाई कर रहे हैं. इससे हम क्या सीखते हैं? हमें कभी भी पैसा इसलिए नहीं देना चाहिए कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें. We should never give to impress someone or to show off. Number 2, हम ये सीखते हैं, we should only give to anyone for the pleasure of Allah, for the sake of Allah. अदरवाइज क्या होगा? हम ये भी सीखते हैं कि हमारे जो इंटेंशंस है वो हमारे एक्शंस को नल एंड वॉइड कर देंगे. हमारा एक्शन अगर दिखावा है, और फिर क्या होगा? इट कुड ऑल्सो अमाउंट टू कुफर या शिर्क. कितनी बड़ी बात है किसी को दिखा के, कहते हैं ना, इसीलिए किसी को दिखाने के लिए नहीं करो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए. एक छोटी सी चीज भी दो, आधा खजूर भी दो, तो अल्लाह की रजा के लिए दो. हमारे अंदर ये एक डिजीज है, समझ लें, कि हम लोग दिखावा करना चाहते हैं. सेकेंड सीन क्या है? सेकेंड सीन आपने देखा कि लश, ग्रीन, फर्टाइल, वेलकमिंग एक लैंड है. उसमें बता रहे हैं कि एक बंदा वो है जो मर्दातिल्लाह, जो कि यब्तगूना, जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, दे आर सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह. उनका क्या होता है? उनका दिल जो है वो खुशी से, अनफुसहुम, वो कह रहे हैं ना, तस्बीतन, वो क्या होता है? मजबूत होते हैं अपने दिल से. उनको एक रीअश्योरेंस मिल रही होती है कि जब हम ये अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह की रजा के लिए देंगे, अल्लाह हमें रिवॉर्ड करेगा. द मोर दे बिलीव इन इट, द मोर दे इन्वेस्ट इन इट. जितना हम ये बिलीव करेंगे कि अल्लाह ताला हमें देने वाला है, हमें अल्लाह ताला रिवॉर्ड देगा, उतना ही हम उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, हम ज्यादा देते जाएंगे. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे बंदे का जो एक्शन है, इट इज लाइक, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो गुडनेस है, वो ऐसी है जैसे थिक, फर्टाइल, रिच सॉइल है. वो बैरन पत्थर की तरह नहीं है. तो जब वो चैरिटी देते हैं, उस ऐसा है जैसे उसके ऊपर बारिश आई. जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है, ज्यादा बारिश हो या कम, उसको नहीं फर्क पड़ता. थोड़ी सी बारिश, एक ड्रिजल भी उसके यील्ड के लिए काफी होती है. वो उनको रिजुविनेट कर देती है और उनकी रिलेशनशिप अल्लाह के साथ बढ़ा देती है. थोड़ा सा भी देंगे, खुश होके देंगे, साबित कदमी से देंगे, अच्छे इंटेंशन से देंगे. और इससे क्या होगा? जब हम अल्लाह पे भरोसा करेंगे, हमारी रिलेशनशिप अल्लाह से बढ़ेगी, तो हमारा वेल्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगा, क्योंकि हम उस रिवॉर्ड के इंतजार में जो अल्लाह हमें देगा. और अल्लाह ताला एंड में कहते हैं कि मुझे पूरी तरह मालूम है, बसीर है अल्लाह ताला, सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, हमारे इंटेंशंस क्या और हमारे एक्शंस क्या. इससे हम क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि चैरिटी जो है वो हमें गुडनेस और काइंडनेस हमारे लिए जनरेट कर सकती है. जो भी चैरिटी, वट एवर वी गिव, इट हैज द कैपेसिटी कि वो हमारे अंदर काइंडनेस को जनरेट करे. और हमें ये भी पता है कि वो गुडनेस और वो काइंडनेस जो वो कंडीशनल है. अगर हम चैरिटी दे रहे हैं, वो कंडीशनल है ऑन द सिंसेरिटी ऑफ आवर इंटेंशंस. अगर हमारे इंटेंशन सिंसियर है तो हमें मल्टीपल टाइम्स अल्लाह रिवॉर्ड करेगा, दे अफाइन, अल्लाह ने कहा डबल. लेकिन अगर हमारी चैरिटी में सिंसेरिटी नहीं है तो वो हमारा जाया हो जाएगा. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ आवर मनी एंड आवर एफर्ट. आया नंबर 266 पे जाते हैं. ये है, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखील मअनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहु फीहा मिन कुल्ली समरात व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रियतुन दुअफा फअसाबहा इअसारुन फीही नारुन फहतरकत कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून. अगेन ये बहुत ही इससे कनेक्टेड आयत है. 254 और 255 के बाद अब ये 256. इसमें अल्लाह ताला फरमाने अयवद्दु, इसका रूट लेटर्स है वाव दाल दाल. इसका मतलब है वद्दा युवद्दु मवद्दतुन. क्या आप में से अयवद्दु अहदुकुम, क्या आप में से कोई ये चाहेगा,
अयवद्दु का मतलब है कोई चीज चाहना, कोई चीज पसंद करना। वद्दा यवद्दु, आपको पता, युवद्दु मवद्दतुन, किसी चीज से मोहब्बत रखना। क्या आप विश करेंगे, क्या आप चाहेंगे, क्या आप पसंद करेंगे? वुड यू विश, वुड एनी वन ऑफ यू विश, क्या चीज विश करेंगे? कि अन तकूना लहू जन्नतुन, कि उनके पास एक गार्डन है। अन तकूना, दैट देयर इज या देयर बी, तकूना लहू फॉर हिम जन्नतुन, अ गार्डन, दैट देयर इज फॉर हिम अ गार्डन। क्या आप कोई विश करेंगे? सब लोग ये चाहेंगे कि आपके लिए एक गार्डन हो, कि उसका एक बाग हो। मिन नखील व आनाब, नखील क्या है? यानी खजूर हो, और आनाब यानी इनब, ग्रेप को कहते हैं आनाब यानी ग्रेप्स, ग्रेप वाइन्स, खजूरों और अंगूरों का, खजूरों और अंगूरों का बाग हो, कि आप ये पसंद करेंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये वर्ड्स कब यूज होते हैं? तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी यानी फ्लोइंग, मिन तहतिहा अंडरनीथ इट इज अनहार रिवर्स, यानी जारी हो या बहते हो जिनके नीचे नहरें। क्या कोई पसंद करेगा? कि नहीं, हम सब पसंद करेंगे। लहू फीहा मिन कुल्ली समरात, लहू यानी फॉर हिम, फीहा इन इट, मिन कुल्ली समरात, ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्रूट, यानी उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हों। यानी एक बाग है और उसमें खजूर और अंगूरों का बाग है, और उसमें दरियाएं बह रही हैं, और उसमें हर किस्म के फल हैं। वह असाबहुल किबर, असाबा आपने अभी पढ़ा था, यानी किसी को पहुंचना। जब बारिश गिरी तो असाबा, जब उस पर कुछ गिरा तो भी असाबा, यानी स्ट्राइक करना। असाबा का मतलब है स्ट्राइक भी होता है। वह असाबहुल किबर, यानी उसके, किबर यानी काफ बारा, यानी कि ओल्ड एज, यानी बुढ़ापा, यानी उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाए और उसको पहुंचे बुढ़ापा। एंड स्ट्राइक्स हिम ओल्ड एज, सब कुछ उसके पास है, उसके पास एक बहती हुई दरियाएं हैं, उसके पास बाग है, उसके पास हर कुछ है, और उसके बाद उसको बुढ़ापा आ जाए। वलहु जुर्रियतुन दुआफा, और उसके बच्चे जो हैं, जुर्रियत यानी उसके जो बच्चे हैं, वो दुआफा यानी वो वीक है, दईफ, दईफ का मतलब बूढ़ा नहीं, दईफ का मतलब वीक, दाइनफा यानी वीक, और उसकी औलाद कमजोर है, उसकी औलाद वीक है, माइनर है, छोटे हैं, नातवान है, जो भी आप कह लें। एंड फॉर हिम आर चिल्ड्रन हु आर वीक या हु आर माइनर, वो खुद बूढ़ा हो गया लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो वीक है और माइनर है, उसकी औलाद कमजोर है और नातवान है। फअसाबहा इअसारुन, और उसमें फअसाबहा, उसमें स्ट्रक करे क्या चीज? इअसारुन, इसके रूट लेटर्स है आइन साद रा, इअसारुन का आइन साद रा, यानी व्हर्लविंड। व्हर्लविंड क्या चीज होता है? जिसको बगोला कहते हैं। ये स्वार यानी इसका, इसके ये मस्तर है, इसका प्लूरल है आसरू, तो उसको स्ट्राइक करे एक व्हर्लविंड। व्हर्लविंड होता है ना जो जोर जोर से घूमता है, टोर्नेडो टाइप का, उसको एक बगोला सा वो आके उसको पकड़ ले। उसकी जो, उसका जो बाग है, उसके जो इतने फ्रूट्स हैं, हर किस्म की चीजें हैं, और उसके अंदर फी ही, उसके अंदर क्या है? फहतरकत, उसके अंदर क्या चीज है? कि वो चीज, फी ही नारुन, उसके अंदर आग है, फी ही नारुन, उसके अंदर आग है। इन इट वॉज फायर फहतरकत, सो इट गॉट बर्न्ड, क्या चीज बर्न हो गया? इसके रूट लेटर्स भी लिख लें, हराकाफ, और इसका फॉर्म 8 है। इहतरका यहतरिकु इहतिराकन, थोड़ा मुश्किल है। इहतरका यहतरिकु यहतरिकु इहतिराकन, ठीक है, फॉर्म 8 है। यानी क्या चीज है? वो जल भुन गया, भस्म हो गया, कहते हैं ना खत्म हो गया, इट गॉट बर्न्ड। सो इन इट वॉज फायर, एक बगोला आया, उसके अंदर आग थी, उस आग की वजह से उसका पूरा बाग जल बुझ गया, भस्म हो गया, इट वॉज बर्न, यानी उसमें आग हो प्लस वो बाग, इसकी वजह से वो बाग जल जाए। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, कज़ालिका इसी तरह, लाइक दैट युबय्यिनुल्लाहु एक्सप्लेन्स या मेक्स इट क्लियर, अल्लाह इसी तरह खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुमुल आयात, आपके लिए अपनी आयात, फॉर यू हिज साइंस और हिज प्रूफ्स, किस लिए? लअल्लकुम ततफक्करून, सो दैट यू मे रिफ्लेक्ट, ततफक्करून यू मे रिफ्लेक्ट, यू मे पॉन्डर, यू मे गिव इट थॉट, ताकि आप तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें इस चीज के बारे में। तफक्करा यतफक्करु तफक्कुरन, तफक्करा यतफक्करु तफक्कुरन फॉर्म 5 है। इसकी तफसीर में अल्लाह ताला हमें देखें क्या बता रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला एक और सीन बता रहे हैं। पहले हमने सीन देखा एक चटियल रॉक का, उसके बाद देखा एक फर्टाइल
बाग का। अब अल्लाह ताला एक फर्टाइल बाग बता रहे हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर हमने अपने जो कुछ हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं उसी से कनेक्टेड है, वो हम अल्लाह की राह में सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दे रहे हैं कि हम कितने जेनरस हैं, हम कितने काइंड हैं, तो अल्लाह ताला किस तरह उस चीज को नल एंड वॉइड तो कर देता है, लेकिन उसके इफेक्ट को भी टोटली रिवर्स कर सकता है। अल्लाह ताला उसको वाइप आउट कर सकता है। किस तरह से? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लग्जूरियंट ब्यूटीफुल गार्डन है, बाउंटीफुल है, फर्टाइल है, उसके नीचे दरियाएं बह रही हैं, नहरें बह रही हैं, और ये जन्नत का पिक्चर नहीं है। अभी मैंने आपको पूछा ना, तहतिहल अनहार, तहतिहल अनहार, तजरी मिन तहतिहल अनहार किसके लिए यूज होता है? जन्नत के लिए। और अल्लाह ताला दुनिया में एक पिक्चर बता रहे हैं कि ऐसा बाग है किसी के पास जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, बिल्कुल जन्नत की तरह। इसके बाद अल्लाह बता रहे हैं कि लेकिन अगर वो बंदा अपनी जेनरोसिटी, अपने इसको वो फ्लॉन्ट करता है, उसके लिए बारे में वो बोस्ट करता है, वो उसे शो ऑफ करता है, लोगों को बताता है कि मैं देखो मैं कितना जेनरस हूँ, दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? जो जो बंदा जिसको वो दे रहे होंगे उसको तो हर्ट होगा ना। यानी सबके सामने उसको दे रहे हैं, सबके सामने उसको सुना रहे हैं, इस तरह क्या होगा? उसकी जो पूरी चैरिटी है वो इस तरह उड़ा ले जाएगी जिस तरह एक वर्ल्ड विंड जो है वो सब चीज को उड़ा के ले जाती है, और फिर खासकर उसके अंदर अगर आग है तो वो हर चीज को जला के राख कर देती है। पूरे ब्यूटीफुल गार्डन को राख कर दिया। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है। आप सोचें, अल्लाह ताला हमारे दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि इस तरह भी हो सकता है। अगर हम चैरिटी दें और हम फ्लॉन्ट करें, हम बोस्ट करें, तो ये कुछ हो सकता है कि वो तमाम चैरिटी जो है वो नाकारा हो जाएगी, बिल्कुल जल भुन के राख हो जाएगी। तो अगर हमारा दिमाग काम करता है, हाउ कैन समबडी इन द राइट माइंड वो विश कर, अयवद्दु, अल्लाह कहते हैं अयवद्दु, क्या कोई विश करेगा? क्या तुम विश करोगे कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना खूबसूरत गार्डन दे रहा है और तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे से हैं और उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा? जब तुम फौत हो जाओगे तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा गार्डन जो है बर्न हो गया। तो ऑब्वियसली जब हम ये देखते हैं ऐसे चीज को, जब हम अल्लाह ताला ग्राफिकली हमको बता रहे, एक सीन हमें डिस्क्राइब करें कि हमने लाइफ टाइम हमारी अर्निंग्स है, हमने जमा किया जमा किया जमा किया, और ओल्ड एज में जाके जब हम सोचते हैं कि हमें इन पैसों की जरूरत है और हमारे बच्चों को इसकी जरूरत होगी, तब क्या होता है? एकदम से वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इमेजिन करें कि आप हियर आफ्टर में, आखिरत में गए। ये ओल्ड एज जो बताया ना अल्लाह ताला ने, इसलिए बताया कि हमें ये एहसास हो कि जब ये जिंदगी हमारी गुजर जाएगी और हम आखिरत में जाएंगे, वहां पर हम एम्प्टी हैंडेड होंगे। हमारी तमाम की तमाम जो चैरिटीज थी, सब कुछ था, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह की राह में नहीं दिया, हमने लोगों को दिखाने के लिए दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा जिसको हम अपने फ्रूट को, अपने हार्वेस्ट को हम इस्तेमाल कर सकें। इससे हम क्या सीखते हैं कि दुनिया की जो भी चीजें हैं वो टेम्परेरी नेचर की हैं, और आखिरत की जो भी चीजें हैं वो परमानेंट नेचर की हैं। तो आखिरत की चीजें हमें ये पता चलता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जो चीज हमने आखिरत के लिए इन्वेस्ट किया वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन जो दुनिया में हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर एक वर्ल्ड विंड आ जाती है तो वो एक आग उसमें से निकलती है और एक फ्लरिशिंग गार्डन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हमारे साथ ये हो सकता है, हमारी नियतों से, हमारी एक्शन से, इंटेंशन एक्शन दोनों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस दुनिया में इन्वेस्ट ना करें, ये मैं हरगिज नहीं कह रही हूँ। हर बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये हम उससे ऑब्सेस्ड ना हो जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट में अपनी सब कुछ को भूल ना जाए, अपनी औकात भूल जाएंगे, जी सब कुछ अल्लाह ने दिया वो भी हम भूल जाएंगे, और हम जो है दुनिया में सिर्फ उस रिचनेस को, अभी आपने देखा था ना कि गनी क्या चीज होता है और गिना क्या चीज होती है, तो हम अगर देखें उस तरह हो जाएगा जैसे कि हमारे दिमाग में यही होगा हर वक्त हम पैसे जमा करें, पैसे जमा करें, पैसे जमा करें, और हियर आफ्टर के लिए हम कोई चीज नहीं जमा करेंगे। और उस वक्त क्या होगा? इट विल बी टू लेट, जबकि हमारा सारा कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका होगा। इट विल बी टू लेट कि हम एक नया गार्डन प्रोड्यूस करें। हम ये भी सीखते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस दुनिया में, दुनिया की वेलबींग के लिए तो कर रहे हैं, वो करना चाहिए, लेकिन इसमें आखिरत की वेलबींग बहुत जरूरी है, आखिरत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक दफा फौत हो गए, उस दुनिया में चले गए, उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। ये हमें इसमें से लेसन लेना है। इसके बाद 5 मिनट रह गए, दूसरी आयत शुरू, एक सेकेंड में देखती हूँ। अच्छा, ये फिर एक लंबी आयत है तो यहीं पर हम रोक लेते हैं, 5 मिनट बाकी हैं। कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह 267 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे। प्लीज क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। आप लोगों ने सबने आयतल कुर्सी का होमवर्क कर लिया?
کوئی اس پہ سوال ہے؟ اسپینڈنگ پہ کوئی سوال ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ کوئی سوال ہے؟ ابھی بھی اس کے بعد کی آیت بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 267. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. How are you, Sarah? Alhamdulillah, not good internet. I wanted to ask about this Umrah. Yeah? If husband has paid for Umrah or for Hajj, so will it be counted for me that's Sawab? Yes. 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 Because husband is it is the responsibility of the husband for everything. And if he pays for you, that's fine. You will get the sawab of your umrah, you will get sawab, even if you play. Look, even there's a hadith about spending in the way of Allah. If you spend from your husband's money, you don't have your own money, you spend from your husband, still you get sawab. You have to have the permission of your husband to spend. You will still get sawab of all the sadaqah that you give from your husband's money. But if I return that money, supposed to, like, if you have somehow I will. If you have money, Yeah. you want to give it, it's up to you. But your husband is responsible, so he can pay, and it's fine. There's no problem with it. Most of the people don't earn, Okay. right? Most of the women don't earn. Majority of the women don't earn. So the husband is responsible for the food, for the shelter, for everything, and he gets more sawab as well. So let it be. Okay, Jazakallah khairan. Or koi question? Farhat, Frida, Zahra, Naseem, Saida. ये आखिर में कौन है जिसका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है? जूम यूजर लिखा हुआ है, ZU लिखा हुआ है. मैं अस्मा. अच्छा, अस्मा, आप हर दफा एक नए नाम से आ जाती हैं. मालूम नहीं, मेरा जो भी काम आईपैड करता है, कभी फोन करता है, कभी जो भी. माशाल्लाह माशाल्लाह. वही मैं कहती कोई है, अब कौन है, सब लोग नजर कोशिश बल्कि मैं पूछने वाली थी आज शमीम से कि अस्मा कैसी हैं, अस्मा आ नहीं रही हैं क्लास में, क्या बात है? हाँ, ये 2 क्लासेस से नहीं, हमारे पास कुछ काम चल रहा था घर का ना, तो हम लोग घर पे नहीं थे. अच्छा, तो बाहर से ले रही थी मैं क्लास, तो 2 वो खत से मैं आपका रिकॉर्ड सुन ली और लिख ली पूरा. मुझे बताते हैं. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. वैयाकुम. और चलें फिर इंशाल्लाह बंद करते हैं. 2 मिनट 1 मिनट बाकी. Can I have one more question? Actually, I have found it on the internet. Sure. But I'm not sure. They said that husband is not supposed to spend on our health problems. Is it true? No, not at all. It is his responsibility to spend for the wife and for the family. Not only for the wife, but for the whole family, for the kids as well. And responsibility includes your health. So he has to pay for your food, for shelter, for health, for your basic needs. Health is a basic need. Okay, if you want to buy branded clothes, then he's not responsible. You buy from your own, it's okay. If you don't have money, you can't force. He has to give you clothes, but not necessarily clothes that are very expensive. Your basic needs have to be fulfilled, have to be done by your husband. Oh, sorry, I forgot to say that detail. Yeah, if they're supposed to separate it or divorced, then he is not obliged to spend on her health problems. While this idaya, you can send this question to me separately. It is not connected with the class today, so just send it to me, inshallah. Okay, so jazakallah khairan. चलें फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह. सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे. दुआ करें कि मेरे पास नेक्स्ट ट्यूसडे भी नेट अवेलेबल हो इंशाल्लाह. शायद यानी कहाँ पर होंगे हम नहीं पता अभी, लेकिन फिलहाल अल्लाह का शुक्र है आज बिजली भी नहीं गई और क्लास भी अच्छी हो गई. चलें. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह खैर. वैयाकुम.
جزاکاللہ یا جزاکم خیرن کثیرا. ایاکم.